بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ دو درخت زمین پر اگے اور وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی بلندی عالم بالا تک پہنچی اور عالم تمام ان کے زیر سایہ ہوا۔ فرعون اس عجیب و غریب خواب سے بہت حیران ہوا، چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے درباریوں اور حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلا کر ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے اس عجیب خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان سب نے کہا کہ ہمیں تھوڑا وقت دو تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ حکمت دانوں نے کہا کہ ہم اس کی تعبیر اپنی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں، اور نجومیوں نے کہا کہ ہم ستاروں کی چال دیکھتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کے بارے میں حساب لگاتے ہیں، اور جادوگروں نے بھی اپنے علم اور عملیات استعمال کرنے تک کا وقت مانگا۔ چنانچہ سب نے اپنا اپنا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے اصلاح مشورہ کیا، اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے یوں بیان کیا کہ اے فرعون، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ بڑا ہونے پر مملکت تمام تمہاری خراب کرے گا اور تمہاری بادشاہی کو ختم کرے گا، اور سب لوگ اس کے زیر سایہ ہوں گے۔ ملک و مملکت اور نعمت کل اسی کے ہاتھ میں آئے گا۔ اور یہ سن کر فرعون بڑا پریشان ہوا اور پوچھا کہ بتاؤ وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ وہ بولے، اس 3 رات دن میں باپ کی پشت سے ماں کی رحم میں آئے گا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ سارے شہر میں منادی کروا دو کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں، آج سے کوئی مرد اپنی جوڑوں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور نہ کوئی عورت ہی اپنے شوہر سے ہم بستر ہو، اور جو حکم عدولی کرے گا اسے قتل کر دوں گا۔ اور اپنے خاص آدمیوں میں سے ایک ایک کو بنی اسرائیل کے ہر گھر پر متعین کیا کہ عدولی حکم کسی صورت نہ ہونے پائے، لعنت اللہ علیہ۔ تب فرعون کے ڈر کے مارے کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی کے سامنے کوئی چارہ نہ تھا۔ باوجود اس تنبیہ اور تحدید کے، اس 3 دن کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز موعود میں وہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو عمران کی بیوی تھی، وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھی۔ پہلے ان سے ایک بیٹا جن کا نام ہارون علیہ السلام اور ایک بیٹی جن کا نام مریم تھا تولد ہوئے تھے۔ عمران فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا اور اس دن فرعون کے محل میں تھا۔ ادھر بیوی کو شوق مباشرت کا ہوا، بہت صبر کیا، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی اور صبر و قرار تمام بحکم ربی جاتا رہا، تو وہ آدھی رات کے وقت اٹھی اور گھر سے نکل پڑی اور فرعون کے محل کے دروازے پر جا پہنچی۔ مرضی الہی سے تمام دروازے محل کے کھل گئے اور تمام نگہبانوں اور دربانوں پر نیند طاری کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل سے اس وقت تمام ڈر خوف نکال دیا گیا، چنانچہ وہ بے خطر محل میں داخل ہوئی اور سیدھا فرعون کے خوابگاہ تک جا پہنچی۔ تب اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی میں کھڑا ہے اور سوائے ان کے تمام لوگوں پر نیند کو طاری کر دیا گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے دل میں بھی وصل کی خواہش کو اجاگر کیا۔ پس جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو صبر و قرار تمام جاتا رہا۔ پس دونوں میاں بیوی نے وہاں سے ہٹ کر مباشرت کی، اور اس طرح مرضی الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی رات کو اپنے باپ کی پشت سے ماں کی شکم میں آئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کو آ گئی، اور یہ بھید کسی کو معلوم نہ ہوا سوائے رب العالمین کے۔ چوتھے روز صبح کے وقت فرعون نے پھر تمام نجومیوں اور حکمت دانوں کو بلایا اور پوچھا کہ کہو تو اس لڑکے کے بارے کیا کہتے ہو، وہ پیدا ہوا یا نہیں؟ تب انہوں نے اپنے اپنے حساب کتاب لگائے اور انہیں گن جوڑ کر جواب دیا کہ شب گزشتہ کو وہ لڑکا اپنے باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ تب ملعون نے تمام سپاہیوں اور پہرے داروں کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، اور 70 درہم بعوض خون کے اس کی ماں کو دے دو۔ اور پھر ایسا اتفاق ہوا کہ چند روپوں کے لالچ میں ماں باپ اپنے بچے کو لا کر خود فرعون کے حوالے کرتے اور اس مردود کے حکم پر اسے خود مار ڈالتے۔ اور اس کے علاوہ ملعون نے بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک ایک کتبی کو تعینات کیا ہوا تھا، جو بچے کی پیدائش پر دیکھتے اگر لڑکا ہوتا تو اسے مار ڈالتے اور اس کے خون کے بدلے ماں باپ کو 70 درہم ادا کرتے، اور اگر لڑکی ہوتی تو اسے زندہ چھوڑ دیتے۔ بس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے دکھ میں رکھا ہوا تھا،
और उनके बेटों को कत्ल करता और उसकी तरफ से कुतबी औरतें आकर बनी इसराइल की औरतों के पेट पे हाथ फेरती, गैर महरम आके हमल देखते पेट से हैं या नहीं। चुनाचा इरशादे बारी है, और जब छुड़ा दिया हमने तुमको फिरौन के लोगों से कि देते तुमको बड़ी तकलीफ, ज़िबा करते तुम्हारे बेटे और जीती रखते तुम्हारी औरतें, और इसमें आजमाइश हुई तुम्हारे रब की बड़ी। फिरौन मलून के आदमी आते और बनी इसराइल की औरतों के हमल देखते कि पेट से हैं या नहीं। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हमल से थी। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो रोटी बना रही थी कि दर्द जिजकी का उठा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौलद हुए, मानिंदे आफताब मुनव्वर के कि उनके नूर से पूरा घर जगमगा उठा। जो कोई उनकी तरफ देखता आंखें खैरा हो जाती। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुए कुछ ही देर हुई कि फिरौन के लोग आ पहुँचे। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अंदेशा हुआ कि अगर उनको पता चला तो जरूर मेरे बच्चे को मार ही डालेंगे, और अल्लाह से दुआ कर रही थी, तू ही मेरे बच्चे को उन जालिमों के शर से अपनी पनाह में रख, अगर उन्होंने देखा तो ये तो मार ही डालेंगे। आखिर जब कोई जगह छुपाने को ना मिली तो रोटियां बनाने के लिए जो तनूर तपाया हुआ था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक कपड़े में लपेटा और उस जलते हुए तनूर में डाल दिया और उस पर एक खाली देग को छोड़ दिया कि देखने से यही गुमान हो कि खाना पक रहा है। उसके बाद फिरौन के लोगों ने आके औरत के पेट पर हाथ फेरा तो कुछ असरे हमल का ना दिखा और बाकी घर में देखा, लेकिन तनूर को जलता हुआ देखकर ख्याल किया कि भला इसमें कोई कैसे हो सकता है, और वापस चले गए। जब बनी इसराइल के लड़के कत्ल किए जाने लगे तो कुतबे फिरौन के पास पहुँचे और अर्ज की कि ए बादशाह, अगर इसी तरह बच्चे कत्ल करते रहे तो करीब है कि बनी इसराइल में लड़के बाले खत्म हो जाएं। तब हमारे काम और खिदमत कौन करेगा? तब मलून ने ऐलान किया कि एक दिन पैदा होने वाले बच्चों को छोड़ दो और दूसरे दिन के कत्ल कर दो। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत इस दिन हुई जिस दिन को छोड़ देते थे, और मलून रोज नजूमियों से इस बाबत दरियाफ्त करता। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तब उन्होंने बताया कि वो बच्चा हिफाजत वाले दिन पैदा हो चुका है। तब मलून ने हुक्म जारी किया कि शहर में देखो और जिस घर में नौमलूद बच्चा नजर आए कत्ल कर दो। बस जब फिरौन के लोग जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो आपकी वालदा को डर हुआ कि ये मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगे। तब उन्होंने आपको तंदूर में डाल दिया जो उस वक्त दहक रहा था। अलगर्ज जब फिरौन के लोग देखभाल कर और घर में किसी बच्चे को ना पाकर वापस हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अपने बच्चे का ध्यान आया। तब वो अपने बच्चे के गम में रोने लगी और अपने गाल पीटने लगी कि ये मुझसे कैसा जुल्म हुआ, मैंने अपने बच्चे को आग में डाल दिया। और तनूर की तरफ देखा तो उसमें दहकती हुई आग को देखकर खुद से कहने लगी कि हाय, अब तक तो वो मासूम जान जलकर भस्म हो चुका होगा और राख भी ना होगी। काश उसकी कोई हड्डी ही मिल जाती कि अपने दुखी और गमजदा दिल की कुछ तो दवा करती। और उसके बाद तनूर पर से देग उतारी कि शायद जिगर गोशे की कोई बाक़ियात ही मिल जाए। और जब देग उठाई तो देखा कि बच्चा बिल्कुल हिफाजत के साथ आग में खेल रहा है और उसके हाथ में एक सेब है। गो कि वो मौसम सेबों का हरगिज न था। बस वो ये देखकर हैरान हुई और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाई। उसके बाद बच्चे को आग से निकाला और दिल में डरने लगी और सोच में पड़ गई कि बच्चे को कहाँ छुपा कर रखा जाए, ऐसा ना हो कि फिरौन के लोग उसे आकर ले जाएं और मार डालें, या कोई और ही देखकर रुपए की लालच में फिरौन को उसकी खबर न कर दे और वो मलून उसे कत्ल कर दे। बस इसी फिक्र में रोती जाती और बच्चे को छुपाने के लिए कोई महफूज जगह तलाश करती। तब अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ। बस हमने हुक्म भेजा मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कि उसको दूध पिला, फिर जब तुमको डर हो उसका तो डाल दे इसको दरियाए नील के पानी में, और ना खतरा कर और ना गम खा, अनकरीब हम फिर पहुंचा देंगे तेरी तरफ और करेंगे इसको रसूलों में से। यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए मूसा की माँ, गम ना कर, उसे दूध पिलाओ, और अगर तुम्हें फिरौन की तरफ से उसकी जान का खतरा है तो उसे दरियाए नील में डाल दो। हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे और जल्द ही उसे दोबारा तुम्हारी तरफ वापस भेज देंगे, और तब तुम्हें कोई खतरा उसकी जान की तरफ से ना होगा, क्योंकि ये हमारा रसूल है और यही है जो फिरौन की मुमलिकत को तबाह करेगा और बनी इसराइल को हिफाजत के साथ फिरौन के जुल्म से निकाल ले जाएगा। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ये बशारत सुनकर बहुत खुश हुई और किसी बढ़ई की तलाश में घर से निकली ताकि एक संदूकचा तैयार करवा सके जिसमें रख के जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में बहा सकती। तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बसूरत एक बढ़ई के उनके सामने आए।
तब उन्होंने पूछा कि क्या तुम संदूकचा बनाना जानते हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जानता हूँ। बस वो उन्हें अपने साथ घर लेकर आई। चुनाचा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बसूरत एक बढ़ई के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के साथ उनके घर आए और एक संदूकचा अल्लाह के हुक्म से ऐसा तैयार किया कि जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किसी किस्म की कोई तकलीफ या परेशानी ना उठानी पड़े। बस हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम संदूकचा तैयार करके वहाँ से निकले और ये भेद सिवाय अल्लाह की किसी को मालूम ना हुआ। एक और रिवायत में बयान किया गया है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बढ़ई को लेकर घर आई तो ये बात किसी को मालूम ना पड़ी, मगर एक हमसाये ने आपको देख लिया। बस वो पीछे हुआ और घर में एक बच्चे की मौजूदगी के बारे जान गया और इस राज से वाकिफ हो गया। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को ये खौफ हुआ कि कहीं ये इस राज के बारे में फिरौन या उसके लोगों को ना बता दे, लिहाजा उसे अपने पास से 70 दीनार बतौर रिश्वत अदा किए और उसे कसम देकर कहा कि खबरदार इस बात का जिक्र भी ना किसी से करना, और बढ़ई को भी 70 दीनार बतौर उजरत अदा करके रुखसत किया। उस हमसाये ने बीबी से भी 70 रुपए लेकर खा लिया और शैतान ने उसके दिल में ख्याल पैदा किया कि अगर तू इसके बारे में फिरौन को खबर करेगा तो यकीनन वो एक अच्छी खबर देने के इवज़ तुझे और भी इनाम देगा और तुझ पर अपनी नेमतों और नवाजिशों को बढ़ाएगा। बस वो उस नीयत से फिरौन के महल की तरफ चला कि उसे लड़के के बारे खबर दे और कुछ इनाम हासिल करे और फिरौन की खिदमत और नेमत से सरफराजी हासिल करे। चुनाचा जब फिरौन के पास पहुंचा और चाहा कि उसे बताए, तभी अल्लाह ने उसकी जबान बंद कर दी और वो गूंगा हो गया। लिहाजा वापस आ गया। जब बाहर निकला तो जबान फिर खुल गई और फिर चाहा कि जाके बताए। जब फिरौन के सामने पहुंचा तो फिर गूंगा हो गया। फिर जब बाहर आया तो जबान खुल गई। इसी तरह 7 मर्तबा कसद किया कि जाके बोले और 7 दफा जबान बंदी हुई। तब वो समझ गया और उस हरकत से बाज आया और सच्चे दिल से तौबा की और ईमान लाया और दोबारा ये बात किसी से ना कहने का अहद किया और इस पर कायम रहा। अलगर्ज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उन्हें दूध पिलाया और उसके बाद उन्हें एक कपड़े में लपेटकर संदूकचे में बंद किया और फिर उस संदूकचे को दरियाए नील में बहा दिया और अपनी बेटी यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम को कह दिया कि ए बेटी, तो इस संदूकचे को देखती हुई इसके साथ दरिया के किनारे पर जा। ऐसा न हो कि कोई इस संदूकचे को देखे और फिर आके खबर करना, जैसा कि कुरान में इरशाद है। और कह दिया उसकी बहन को उसके पीछे चली जा। फिर वो देखती रही उसको अजनबी होकर और उनको खबर ना हुई। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन उस संदूकचे पर नजर रखे हुई थी, लेकिन अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी और जानिब देख रही हो, और ऐसा इस वजह से कि कोई उस तरह उन्हें देखते हुए देखकर संदूकचे की तरफ मुतवज्जा ना हो जाए। लिहाजा इस तरह किसी को इसके बारे में कुछ खबर ना हुई सिवाय अल्लाह के कि वो हर चीज का जानने वाला है।